Hello, good evening, my dear students. Welcome to Target IES. So, my name is Akansh Vashisht and I have secured All India Rank 20 in Indian Engineering Services 2019. So, in the previous video, we ended till here and I proved that work is a path function, heat is a path function, right? And we derived different expressions for work. Okay, and still we have left with adiabatic process, right? Adiabatic process का वर्क निकालना बाकी है और हमने आइसोथर्मल तक एंड किया था. ओपन प्रोसेस के लिए हमने निकाला तो वो हमने देखा कि एक्सप्रेशन सेम आ रहा था एज दैट ऑफ क्लोज सिस्टम, राइट? सो वी सेड दैट हेंस दिस इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद है? सो हमने यहाँ तक एंड कर लिया था. चलिए अब हम फाइनली एडियाबेटिक प्रोसेस पे आ जाते हैं. ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो ये है वैलिड इक्वेशन, दैट इज पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट. So I can say P initial to the power gamma equals to P final V final to the power gamma, which is constant, right? Actually ये adiabatic process नहीं, ये reversible adiabatic process के लिए valid equation. I must say reversible adiabatic process के लिए equation valid है. PV to the power gamma equal to constant, not only adiabatic, it's reversible adiabatic. So आप same integration perform करेंगे. So minus VdP you have to use the formula. So put volume in terms of pressure, right? Like this. So on putting this in the integral and putting the limits, so you can integrate very well easily. So ये आ जाएगा integration. Now you putting the limits, you get this much, and finally you get this equation of the form of work. ये work मिल गया आपको, ठीक है? Problem क्या है सर? यहाँ पर C है. Now I don't want a C, okay? ये constant हटाना है मुझे. और देखिए कांस्टेंट यहां से हटेगा. देखिए P initial V initial to the power gamma equals to P final V final to the power gamma. So again, as I told previously, if constant is multiplied with final thing, final condition, so आप मल्टीप्लाई कीजिएगा P final V final to the power gamma here. और यहां पर C P initial के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, so here you put P initial V initial to the power gamma. Okay, just put very wisely like this. इस तरीके से पुट करेंगे आप. And then you will end up with this equation finally. ये आ जाएगा आपके पास में गामा टाइम्स माइनस पी फाइनल वी फाइनल प्लस वी इनिशियल अपॉन गामा माइनस 1. और यू कैन राइट इट लाइक दिस वे, गामा टाइम्स पी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल अपॉन गामा माइनस 1. नाउ लुक एट दिस टर्म इन द ब्रैकेट वेरी केयरफुली. इज इट द सेम एक्सप्रेशन बीइंग डिराइव्ड इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम एडियाबेटिक वर्क? क्लोज सिस्टम एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो वर्क का डेरिवेशन था वो यही था ना, यही फॉर्मूला दे रहा था. सो कैन आई से द वर्क डन ओपन सिस्टम विल बी गामा टाइम्स वर्क ऑफ क्लोज्ड फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस. अगेन रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ठीक है? सो ये वैलिड हो गया. ओके, नाउ सिंस पीवी को मैं एमआरटी लिख सकता हूं, सो पीवी को आप एमआरटी लिख सकते हैं. सो दैट विल बी गामा टाइम्स MRT initial minus MRT final upon gamma minus 1, right? Same equation. Now, if I talk about polytropic process again, so polytropically just replace gamma with n, that's it. Gamma को n से replace कर दीजिए, so ये आ जाएगा n times P initial minus P final upon n minus 1. So यहाँ पर बोलेंगे अपन W open is equals to n times W of closed, that's it. Now we come to the next topic, that is heat. हीट क्या होती है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरेक्शन अमंग्स द सिस्टम एंड द सराउंडिंग बाय वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस. बाय वर्च्यू ऑफ देयर टेम्परेचर डिफरेंस, एंड इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन mc delta t. m is the mass, c is the specific heat capacity, delta t is the temperature difference. फाइन. अब स्पेसिफिक हीट को कैसे डिफाइन करेंगे? मैं डिफाइन ऑलरेडी कर चुका हूं, फिर भी कर देते हैं. यू पुट m इक्वल टू 1 एंड डेल्टा t ऑल्सो इक्वल्स टू 1. सो dq will be क्या आ जाएगा? मतलब डेल्टा q will be c, right? So it is the amount of heat required to raise the temperature of a unit mass substance by 1 degree temperature difference. That's it. The amount of heat required which is required to raise the temperature of unit mass by unit temperature difference. That is the specific heat, right? Specific heat capacity. Units will be kilojoule per kilogram Kelvin. So on rearranging the terms, C will be dq upon m delta t. Okay. Now, why I have done this? Deliberately I have done this. Let us take some cases and find out the specific heats for different processes. Example. चलिए इसके अलावा पहले हम लोग ये देखते हैं
in the case of solids and liquids, because they are incompressible, so there is single value of specific heat, whereas in the case of gases, since they are compressible, so it depends on the process whether it is a constant pressure or constant volume. So इसके लिए Cp Cv देखिए, एयर के लिए ये जो वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू एयर के लिए याद है, मैंने आपको याद करवाया था. So this is the value for air, and C for H2O is 4.187 kilojoules per kilogram Kelvin. किलोग्राम केल्विन आएगा. एंड Cp and Cv 1.005 and 0.718 किलो जूल्स पर किलोग्राम केल्विन. दीज वैल्यूज आर फॉर एयर. गामा क्या आता है? Cp डिवाइड बाय Cv, दैट इज 1.4. ये याद होना चाहिए आपको. अब देखिए, द वैल्यू ऑफ एडियाबैटिक इंडेक्स स्पेसिफिक हीट इज 0. चेक करिए, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए dq क्या हो जाएगा? 0. सो C विल बी इक्वल टू 0. नाउ आइसोथर्मल के लिए क्या होगा? इनफाइनाइट. व्हाई? बिकॉज एट द आइसोथर्मल कंडीशन डेल्टा T बिकम्स 0. सो डिनोमिनेटर बिकम्स 0. So something divided by infinity is what? Something divided by 0 is infinity. So therefore specific heat क्या हो जाएगा? Infinity for isothermal process. Now इससे पहले जब मैं डेरिवेशन कर रहा था, याद है आइसोथर्मल वर्क के लिए, तो मैंने कहा था कि Cp अपॉन Cv नॉट इन डेरिवेशन प्रोसेस. Cp अपॉन Cv की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है. Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, राइट? अब इसको देखते हैं क्यों. सो व्हाई द वैल्यू ऑफ Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv. ऐसा क्यों? बिकॉज इन द केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस द हीट विच इज रिक्वायर्ड, हीट जो हमने सप्लाई करी वो कहाँ जाती है? सिर्फ टेम्परेचर को इंक्रीज करने में या फिर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में. इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी एट द मॉलिक्यूलर लेवल विच द मॉलिक्यूल्स एक्वायर एट बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर. सो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल्स में चली जाती है. कोई वर्क नहीं मिलता. क्यों? क्योंकि वर्क क्या होता है? इंटीग्रल पीडीवी. नाउ एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटीग्रल पीडीवी इज 0. सो द हीट विच इज गिवन बेसिकली इट इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी. जबकि प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के केस में जो हीट होती है हमने सप्लाई करी वो दो पार्ट में जाती है. एक तो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में और वर्क करने में, बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. ओके, सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ Cp इज ग्रेटर देन Cv. फाइन, बिकॉज इट हैज लार्जर कैपेसिटी सो एज टू इंक्रीज द टेम्परेचर एज वेल एज टू डू वर्क. फाइन, इसीलिए Cp Cv से बड़ा होता है. एंड वी विल प्रूव इट मैथमेटिक्स वेल. मैथमेटिकली भी इसको प्रूव कर देंगे. चलिए, अब हम लोग साइन कन्वेंशन देख लेते हैं फॉर हीट एज वेल. वी हैव सीन साइन कन्वेंशन फॉर द वर्क. वेरी सिंपल. हीट सप्लाइड टू द सिस्टम क्या होता है? पॉजिटिव. देखिए, अगर हम किसी को हीट सप्लाई देते हैं तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? टेम्परेचर इंक्रीज होने की. तो इसलिए हीट सप्लाई क्या होगा? पॉजिटिव. अगर हीट रिजेक्ट हो रही है सिस्टम से तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? टेम्परेचर कम होने की, मीन्स कूलिंग. सो क्यू रिजेक्टेड विल बी नेगेटिव. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट. हमने दो टाइप के वर्क देखे, ओपन और क्लोज्ड वर्क. ऐसे ही हीट के भी दो टाइप होते हैं, सेंसिबल और लेटेंट. सो सेंसिबल क्या होती है? इट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टेकिंग प्लेस बाय द वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस एंड इट इज गिवन एज mc डेल्टा टी. और लेटेंट हीट क्या होती है? लेटेंट हीट माय डियर कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेज चेंज करने के काम आती है. इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कॉज द फेज चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर. याद रहे. फाइन. सो बेसिकली जो हीट जाती है वो लेटेंट हीट क्या करती है? जो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग थी ना, उसको ब्रेक करती है, उसको लूज कर देती है. सो देयरफॉर फेज चेंज टेक प्लेस बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एंड सेंसिबल हीट में द फेज इज रिमेनिंग द सेम. ओनली थिंग इज दैट देयर इज अ हीट ट्रांसफर बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर चेंज होता है. नाउ द एक्सप्रेशंस फॉर द सेंसिबल एंड लेटेंट हीट आर एज फॉलो. सेंसिबल हीट होती है mc डेल्टा टी एंड वेयर इज लेटेंट हीट क्या होती है? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ सॉलिडिफिकेशन, वेपराइजेशन या फ्यूजन, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस. ठीक है, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मटेरियल्स. जैसे वाटर के लिए 335 किलो जूल्स पर किलोग्राम होती है. वाटर के लिए जो लेटेंट हीट होता है वो 335 किलो जूल्स पर किलोग्राम होता है. नो नीड टू रिमेंबर. ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये होता है वाटर के लिए. नाउ हम लोग क्या कर रहे हैं? आइस लेते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे. तो -10 डिग्री सेंटीग्रेड, अब हमने हीट करना चालू किया सिस्टम को. हमारा सिस्टम क्या है? आइस. सो सबसे पहले क्या होगा? -10 डिग्री आइस कन्वर्ट होगी 0 डिग्री आइस में.
ठीक है. सो देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस टेकिंग प्लेस बट एट कांस्टेंट फेज, सो इट इज अ सेंसिबल हीट. नाउ दिस आइस विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड वाटर but at the same temperature, so this is latent heat. Now this 0 degree liquid water will convert into 100 degree liquid water, so temperature difference with the same phase, so sensible heat. Now this liquid water will convert into vapor, 100 degree Celsius water vapor, saturated water vapor बोलेंगे इसको, ठीक है, because the vapor is in equilibrium condition with the liquid water, इसीलिए इसको saturated condition पे water vapor बोलते हैं. So again this is the latent heat because कंडीशन क्या है, टेम्परेचर इज सेम, ओनली फेज चेंज टेकिंग प्लेस. नाउ हमने और हीट दिया इसको, सो जो वाटर वेपर था वो कन्वर्ट हो जाएगी सुपर हीटेड स्टीम में, बिकॉज द टेम्परेचर इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट, सो 150 डिग्री सेंटीग्रेड. सो देयरफॉर इट इज द सुपर हीटेड कंडीशन. फेज इज सेम वेपर कंडीशन बट द टेम्परेचर डिफरेंस टेकिंग प्लेस, सो देयरफॉर इट इज द अगेन sensible heat taking place. Okay, now at last we have studied work and heat interaction, so now we are in a position to define first law, और first law related equations हम लोग देखेंगे. So now next come to the topic first law of thermodynamics. इसके और भी नाम है. First law of thermodynamics is also known as law of conservation of energy, right? Law of कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसको एक और नाम बोलते हैं जूल्स लॉ. इसको हम लोग जूल्स लॉ भी बोलते हैं बिकॉज ही इन्वेंटेड दिस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. एंड इसको हम लोग क्वांटिटेटिव लॉ भी बोलते हैं बिकॉज इट एक्सप्रेसेस द एनर्जी इंटरेक्शंस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. फाइन, सो इसके ये भी नाम है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जूल्स लॉ या फिर क्वांटिटेटिव लॉ, ये आप याद रखिएगा. नाउ एक्चुअली व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. देखिए इन जनरल यदि हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम कहीं भी पढ़ते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं, एक कॉमन लाइन जरूर लिखी होती है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म. ओके, दिस इज द यूनिवर्सल डेफिनेशन, बट व्हाट इज द स्पेसिफिक डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फॉर अ क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस, द नेट हीट इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू नेट वर्क इंटरैक्शन when they are expressed in their own units. For example, दोनों की ही यूनिट होती है जूल. So for a cyclic process, basically net heat interaction will be equal to net work interaction, and it is represented by cyclic integral like this. ठीक है, so इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस. याद रखिएगा जैसे कि ये हो रहा है, so it is applicable for cyclic process. Okay, now अब इसी को एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम अप्लाई कैसे करेंगे ये देखिए. नाउ 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, 3 से लेके 4 एंड देन बैक टू 4 से लेके 1. 4 प्रोसेसेस आर गोइंग ऑन इन अ साइकिल. सो लेट अस अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ साइकिल. नाउ यू विल राइट नेट हीट इंटरेक्शन विल बी नेट वर्क इंटरेक्शन. सो हीट इंटरेक्शन 1 to 2 प्लस हीट 2 to 3 प्लस Q 3 to 4 प्लस 4 Q to 1 विल बी वर्क फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 प्लस 4 to 1. दिस वे you will have to write the first law for the cyclic process. ये जो इक्वेशन आई है, ये जो इक्वेशन है, that is the cyclic integral of d equal to cyclic integral dw. Is it applicable for all the processes? Yes, it is applicable for both reversible and irreversible process. क्योंकि ये एनर्जी कंजर्वेशन है, इट इज यूनिवर्सल लॉ. ठीक है, बट ध्यान रखिएगा बस ये साइकिल के लिए वैलिड है, ओनली फॉर साइकिल. ठीक है, ओके. इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेस. जैसे कि आप सोचे 1 से 2 के लिए लगा दें, W 1 से 2 इज नेवर इक्वल टू Q 1 से 2. ओके, हाँ, ये बराबर नहीं होगा. सो यू कैनॉट अप्लाई इट फॉर अ प्रोसेस बट इट इज एप्लीकेबल फॉर अ साइकिल. सो this is the problem with the equation 1, that is it cannot be applicable for a single process, it is applicable only for a cycle. Okay, now consequences of the first law of thermodynamics, मतलब इसके हम कुछ derivations करेंगे, कुछ inferences निकालेंगे फर्स्ट लॉ के. देखिए सबसे पहला inference हम लोग निकालेंगे that heat transfer is a path function. ये हम प्रूव करेंगे. heat transfer एक path function है, that we will prove. Now for this I have shown you PV diagram in which a system goes from one state to the second state via process A. Okay, and then there are two pathways to go back to position 1, that is B and C.
So I have deliberately drawn two paths B and C for to go to position 1 once again, right? So अब हम क्या कर सकते हैं, दो साइकिल लेंगे 1A2B1 1A2B1, राइट, क्लियर। एक ये साइकिल लेंगे, दूसरा क्या लेंगे 1A2C1 1A2C1, ठीक है। और इन दोनों के लिए हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे। सो इफ यू टेक द साइकिल एज 1A2B1, क्या आ जाएगी इक्वेशन, Q1A2 प्लस Q2B1 विल बी इक्वल टू W1A2 प्लस W2B1। इज इट ट्रू? नाउ यू टेक नेक्स्ट साइकिल 1A2C1, देन अप्लाई फर्स्ट लॉ, क्या आ जाएगा Q1A2 प्लस Q2C1 इक्वल्स टू W1A2 प्लस W2C1। You have two equations with you. You have two equations by considering two separate cycles. Now what you do, A minus B करो, subtract the two equations. On subtracting, can you see that these terms will be cancelled? Fine. Again these terms will be cancelled. क्या बच जाएगा, Q2B1 minus Q2C1 will be W2B1 minus W2C1। देखिए क्या यही आ रहा है, इज इट ट्रू? ओके, नाउ सी द राइट हैंड साइड, दैट इज W2B1 माइनस W2C1। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, W2B1 कैसे निकालेंगे? देखिए वर्क क्या होता है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम प्रोजेक्टेड ऑन वॉल्यूम एक्सिस। सो व्हाट डू यू थिंक, इज इट डिपेंडेंट ऑन पाथ? बिल्कुल यार, पाथ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि तभी तो हम एरिया निकाल पा रहे हैं उसका। सो देखो, अब 2B1 अगर प्रोसेस लेते हैं, सो 2B1 दिस इज द प्रोसेस। नाउ यू प्रोजेक्ट द एरिया ऑन द वॉल्यूम एक्सिस, सो दिस इज द एरिया, दिस इज द एरिया, गॉट इट? नाउ सिमिलरली 2C1 देखो, अब 2C1 देखो, 2C1, सो नाउ दिस विल बी द एरिया, ये वाला एरिया होगा। नाउ यू टेल मी, are both the area same or different? They are different, yes. So W2B1 W2C1 के बराबर है क्या? नहीं, they are not equal. So therefore अगर ये इक्वल नहीं है, so right hand side will not go to 0. So I can say that Q2B1 minus Q2C1 not equal to 0. अगर Q2B1 minus Q2C1 not equal to 0, so hence they are not equal. If they are not equal, that means heat interaction through one process is never equal to heat interaction through another process. So therefore it is a path function. So this is the proof. Fine. Okay. Now अब देखिए, हम यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है, इस टर्म को थोड़ा रीअरेंज करेंगे हम लोग, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे वापस, और इसी टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। तो देखो क्या यही आएगा, देखो Q2B1 माइनस W2B1 इक्वल्स टू Q2C1 माइनस W2C1। मैंने क्या करा, 2B1 वाला जो पाथ है वो मैंने सेम तरफ कर दिया, सेम साइड पे मैंने 2B1 रखा और दूसरी तरफ मैंने 2C1 की टर्म रख दी। सो Q2B1 माइनस W2B1 इक्वल्स टू Q2C1 माइनस W2C1। देखो यही आ रहा है, इज इट ट्रू? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। नाउ आपको एक चीज दिखाई दे रही है कि दो पाथ 2B1 और 2C1, इसके अक्रॉस Q और W का डिफरेंस सेम आ रहा है। द डिफरेंस बिटवीन Q एंड W on both the paths 2B1 and 2C1 are same. So क्या ये प्रॉपर्टी है? क्यों? क्योंकि ये पाथ का इंडिपेंडेंट हो गया ना, क्योंकि दोनों पाथ के अक्रॉस Q माइनस W, मतलब Q और W का डिफरेंस सेम आ रहा है, तो मतलब ये प्रॉपर्टी है, इट इज अ पॉइंट फंक्शन। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एनर्जी बोलते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग एनर्जी बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी इंटरनल नहीं बोला, अभी मैंने सिर्फ एनर्जी बोला है, और एनर्जी में सारी टर्म्स आ जाएंगी। सो दिस इज एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय E. सो dq विल बी, hence we can write it as dq minus dw will be dE, which is a point function and exact differential. So dq will be dE plus del w. Now this is again an equation,
अगेन इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बट दिस टाइम दिस इज एप्लीकेबल फॉर अ प्रोसेस. ओके, साइक्लिक वाला जो फॉर्मूला था ये पाथ के लिए वैलिड था, सॉरी साइकिल के लिए वैलिड था. नाउ दिस इज वैलिड फॉर अ प्रोसेस. ये प्रोसेस के लिए अप्लाई होगा, जबकि ये पूरे पाथ पे अप्लाई होगा, पूरे साइकिल पे अप्लाई होगा. सॉरी, पूरे साइकिल पे. अभी एनर्जी क्या होती है? देखिए, एनर्जी में दो कंपोनेंट आते हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक. मैक्रोस्कोपिक में क्या आ गया? काइनेटिक पोटेंशियल वाली टर्म्स. काइनेटिक बाय वर्च्यू ऑफ इट्स वेलोसिटी, पोटेंशियल बाय वर्च्यू ऑफ इट्स हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द डेटम. ठीक है, ये डेटम लेते हैं हम लोग, सपोज रेफरेंस के थ्रू, रेफरेंस से यदि वो कुछ हाइट पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है. नाउ वी आर निग्लेक्टिंग बोथ द टर्म्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज वर्च्यू ऑफ टेम्परेचर. ओके, और इस माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी बहुत सारी एनर्जी आती है. मॉलिक्यूल्स की आपस में वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है, उनकी जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जीज आती हैं, और टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग और भी एनर्जी जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी भी आती है, बाइंडिंग एनर्जी जो होती है इनमें. सो ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कंस्टिट्यूट इंटरनल एनर्जी, मीन्स दैट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो आप सोच सकते हैं. सो इसकी वैल्यू जो है इनके कंपैरिजन में माइक्रोस्कोपिक के टर्म में बहुत कम आती है. सो देयरफॉर काइनेटिक एंड पोटेंशियल आर वेरी वेल निग्लेक्टेड. जैसे कि आप प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे तो देखिएगा आप काइनेटिक पोटेंशियल की वैल्यूज हार्डली जूल्स में आएंगी, जबकि इंटरनल एनर्जी किलो जूल्स में आती है. सो इनका इनके सामने कुछ नहीं है. सो देयरफॉर दे कैन बी निग्लेक्टेड वेरी वेल. सो नाउ दिस एनर्जी यू जो कि माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विद द मॉलिक्यूल्स इज बेसिकली इंटरनल एनर्जी. ये इंटरनल एनर्जी है. सो ऑन निग्लेक्टिंग काइनेटिक पोटेंशियल डीई बिकम्स डी यू. ठीक है, सो अब इक्वेशन क्या बन गई? डेल क्यू इज इक्वल्स टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. Okay, so this is the first law of thermodynamics once again, but applied for the process, neglecting kinetic and potential terms. Clear हुई चीजें? पक्का? Now. अच्छा, मैंने आपको पीडीवी जब वर्क पढ़ाया था तो उसके लिए मैंने कुछ कंडीशंस बताई थी. वो कंडीशंस यहां पर दी हुई है. एक तो मैंने आपको रिवर्सिबल के बारे में बताया था, ठीक है, एक क्लोज सिस्टम होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन ये होता है इट शुड क्रॉस द बाउंड्री. The work should cross the boundary. Okay, so ये conditions बहुत important है, आप याद करेंगे for the objective point of view. Okay, now ये जो इक्वेशन है del q is equals to du plus del w. Okay, इसी को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं. देखिए, del w को मैं क्लोज सिस्टम के लिए pdv लिख रहा हूं. ठीक है, so del q will be del u plus pdv, du plus pdv. This is applicable for closed system. Now this is applicable only for reversible process, क्योंकि रिवर्सिबल के लिए मैं dw is equals to integral pdv लिख सकता था. So it is applicable for reversible process and closed system. रिवर्सिबल हो और closed system उसके लिए applicable है. Now what do you think? Energy for an isolated system is constant or not? It is constant. Why? बिकॉज आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल आप यूनिवर्स मैंने आपको दिया था पहले. यूनिवर्स का है सिस्टम प्लस सराउंडिंग. सो सिस्टम सराउंडिंग में ही आपस में एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है. इज देयर एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सराउंडिंग? नो. सो हेंस द ओवरऑल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट. सिंपल इक्वेशन. ठीक. नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग आ जाते हैं पीएमएम 1 पे. पीएमएम होता है परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ फर्स्ट काइंड. देखिए, जो ये नंबर शो हो रहा है दैट मीन्स दिस हाइपोथेटिकल मशीन इज वायलेटिंग दिस वेरी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. मीन्स अगर 1 है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट कर रहा है. सो इट्स अ हाइपोथेटिकल मशीन बिकॉज नो सच मशीन इज पॉसिबल, बिकॉज इट सेज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट सच ए मशीन दैट प्रोड्यूसेस वर्क कंटिन्यूसली विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, एक डिवाइस लीजिए, आप कोई हीट नहीं दे रहे, कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं आप, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वर्क मिल जाए. ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो इस तरह की हाइपोथेटिकल डिवाइस को हम लोग पीएमएम 1 बोलते हैं बिकॉज इट वायलेट्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. सो दिस विल ऑल्सो बी वायलेटेड विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहती है. वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, बट वो जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट यू हैव टू प्रोवाइड ना, दैट देन ओनली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैटरी मोटर को सिस्टम लेते हैं, so battery will provide electric energy to the motor and motor will convert that electric energy to the mechanical energy. So one form of energy converted into another form. दोनों ही वर्क हैं,
बट वन फॉर्म ऑफ वर्क इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म. ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं दिया और आपको शार्क वर्क मिल जाएगा, ऐसा थोड़ा ना पॉसिबल है. सो दैट इज द थिंग. नाउ विल डिराइव सम एक्सप्रेशंस फॉर हीट फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. राइट, हमने वर्क का देखा, अब हम हीट का देखते हैं. नाउ अप्लाइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq विल बी इक्वल्स टू du प्लस pdv. वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल डूइंग फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए कर रहे हैं हम लोग ना. सो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो क्या लगता है, pdv जीरो हो जाएगा. यस, dv बिकम जीरो. सो dq क्या बचेगा, du. नाउ सिंस इट इज अकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और dq क्या होता है सेंसिबल के टर्म्स में, mc डेल्टा t. ओके, mc डेल्टा t. नाउ इट्स अकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो mcv होगा, cv, mcv delta t, because it's occurring at constant volume. Now from one equation you can say that dq is equals to du, and from here you are getting dq equals to mcv dt. So from comparing 1 and 2, by comparing 1 and 2 equations, what you get? Yes, du is equals to mcv delta t. यहां से क्या मिलेगा, du is equals to mcv delta t. dt लिख देते हैं इसको, डिफरेंशियल फॉर्म में है ना, mcv dt, एंड दैट इज व्हाट इज रिटन हियर. ठीक है, इन द एक्सप्रेशन d इज इक्वल्स टू mcv dt आ गया. अब देखिए यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है दैट इज u, दैट इज द सोल फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. मास cv सब सेम है, सिर्फ क्या है, ये फंक्शन टेम्परेचर का ही फंक्शन है. सो टेम्परेचर का है पॉइंट फंक्शन, तो इंटरनल एनर्जी तो वैसे भी पॉइंट फंक्शन है. ठीक है, सो जो ये एक्सप्रेशन है u इज इक्वल्स टू mcv डेल्टा t, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द प्रोसेसेस बिकॉज इट कंटेन्स ऑल पॉइंट फंक्शंस. बट ध्यान एक बात का रखना है, प्रोसेस तो ठीक है बट ओनली फॉर आइडियल गैस. सिर्फ आइडियल गैस के लिए ही वैलिड रहेगा ये. ठीक है, सो एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू रिमेंबर इज दैट इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, बट ओनली फॉर आइडियल गैस. रियल गैस के लिए टेम्परेचर के अलावा वॉल्यूम का भी फंक्शन आता है. वील सी एट द लेटेस्ट इन द लास्ट चैप्टर. सो इंटरनल एनर्जी फिलहाल टेम्परेचर का सिर्फ फंक्शन है, बट फॉर ओनली आइडियल गैस. अब हम लोग एक नई टर्म डिफाइन करते हैं, एंथैल्पी. ये एंथैल्पी क्या होती है, देखिए एंथैल्पी होती है टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम, एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर दिस एंथैल्पी क्या रहेगी, H इक्वल्स टू u प्लस pv. अब देखिए u हमने बात कर ली इंटरनल एनर्जी विच इज बाय वर्च्यू ऑफ द टेम्परेचर, और साथ में एक टर्म और आ रहा है pv, प्रेशर इनटू वॉल्यूम. दैट इज दिस इज द टेम्परेचर कंपोनेंट है ना, थर्मल कंपोनेंट, एंड दिस इज द प्रेशर कंपोनेंट. मतलब ये थर्मल एनर्जी है, ये प्रेशर एनर्जी एक तरीके से. ठीक है, तो इसको हम लोग फ्लो वर्क बोलते हैं. ये फ्लो वर्क होता है, P इंटू V. फाइन, फ्लो वर्क को हम लोग अभी डिफाइन करेंगे. एंड स्पेसिफिक कब आप कैसे डिफाइन करते हैं, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास. सो आप मास से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा. देखिए स्पेसिफिक कोई भी क्वांटिटी होती है उसको स्मॉल से रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, तो स्मॉल h विल बी स्मॉल u प्लस p इंटू स्मॉल v, और इसको न्यू भी बोल सकते हैं. सो दिस इज स्पेसिफिक वॉल्यूम. इफ इट इज वॉल्यूम, सो दिस विल बी स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास. सो एंड दिस टर्म विल बी स्पेसिफिक फ्लो वर्क. ओके, बट व्हाट इज दिस फ्लो वर्क, ये फ्लो वर्क क्या होता है. सॉरी, फॉर दिस टेक दिस वेरी एग्जांपल. हम एक कंट्रोल वॉल्यूम लेते हैं. माय डियर, कंट्रोल वॉल्यूम एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है जो कि हम कंसिडर करते हैं, जो कि जिसके अंदर से हमारा मास एंटर होता है और हमारा जो मास है वो एग्जिट होता है. दैट इज द कंट्रोल वॉल्यूम. जैसे सिस्टम लेते हैं ना हम लोग, ऐसे ही कंट्रोल वॉल्यूम भी होता है. whenever there is a flow process taking place, so we'll take control volume. Okay, so इतना सा मास एंटर हो रहा है, दिस इज इनफाइनेटेसिमल स्मॉल मास एंटरिंग एंड लीविंग. सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मास, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस दिस इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम और टू एग्जिट इट फ्रॉम द कंट्रोल वॉल्यूम इज द फ्लो वर्क. बेसिकली इसी को ही फ्लो वर्क बोलते हैं. इज द अमाउंट ऑफ वर्क विच इज रिक्वायर्ड टू displace an infinitesimal small fluid element into or out of the control volume is known as flow work. So ये होता है flow work. Fine. Now, okay. So इस वीडियो में इतना ही करेंगे. From next video we'll continue from here. Thank you so much. Thank you.